HDFS, I mean Hadoop Distributed File System. So before proceeding to Hadoop Distributed File System, let's look at what is distributed file system. And before proceeding to distributed file system, let's see what is file system. Okay. So let's see what is a file system. So if you see, I did cd slash. Slash is my root directory. Okay, this is my root directory. अब इस root directory के अंदर if I do ls, I can see all my folders or compartments which I can say. So all my user related stuff is kept here, or my system related stuff is kept here, or my binaries are kept here, or my operations are kept here, home related things are kept here, or my USR related things are kept here. So this is a file system, which is a segregation or compartmentalization of my files. In case of Windows, you can see in my computer there are 2 to 3 drives: local disk C, local disk D, or inside local disk C you have program files, you have system files, you have many kind of files. Okay, basically this is one architecture which is followed. Let's say you have to see what are your binaries. So cd bin will show you what all are your binaries. Binaries means आपकी commands. cat command जो था, copy cp command जो था, echo जो command था, mkdir command था. These all are binaries or bin commands. Okay. Now these all commands are located inside bin. अब मैं bin के अंदर अपने movies और TV shows नहीं डालूंगा. Why? Because bin is allocated just for these commands. So I won't keep anything else in my bin. If I want to keep something, I'll see if my users में कौन से users है. So I have a user known as CoinDelta, Shared and Ayush. So I am currently using my user CoinDelta. Okay, so I'll do cd CoinDelta, and this is my CoinDelta user ke files. Now I can see my desktop, documents. Let's say I want to see what's on my desktop. So I'll do desktop, cd desktop, and I'll see that desktop में ये सारी चीजें हैं. These all basically are these things. See, this is how I reached my desktop. This is how my file system is designed. Okay, file system ऐसे design होता. I have to download The Boys का पूरी series मुझे download करनी है, and the capacity of my computer is 113 GB, of which only 16 GB is free, and the entire HD UHD quality of The Boys is around 20 GBs of storage. So can I store it in my laptop? Simple सी बात है, I can't, because मेरे पास available सिर्फ 16 GBs है. How can I store 20 GB of data if I have 16 GB? So this is one limitation of your file system. कि capacity से आगे नहीं जा सकते. This is one limitation of our file system. So let's say कि भाई हमारे पास आपकी capacity का भी solution है. हम external hard disk use करेंगे. हम external hard disk use करेंगे, उसके अंदर हम दुनिया भर की चीजें रखेंगे, सब रखेंगे हम. Boys, girls और सब टीवी शोज डाल देंगे इसके अंदर. अब बताओ आप क्या करें. Now let's say this hard disk, external hard disk crashes. Let's say मैंने clear कर दिया external hard disk और सब चला गया. What now? अब मैं क्या करूं? अब मेरा जो local file system है, पहली बात वो तो पहले बहुत weak था, capacity weak थी. तो now I increase the capacity by using an external hard disk. वो भी crash हो गई. Now what I can do? Now I'll be wise and select distributed file system. Now what does distributed file system say? Distributed file system says कि आपका जैसा कंप्यूटर है
वैसे बहुत सारे कंप्यूटर, सिमिलर काइंड ऑफ मशीन्स are distributed all over the network and they all are sharing their resources. They all are sharing their resources. They all are saying कि मेरे पास 10 GB रैम है, मेरे पास 100 GB हार्ड डिस्क है, तुम इसको शेयर कर सकते हो। एक और सिस्टम में कह रहा है मेरे पास 20 GB रैम है, मेरे पास 50 GB स्टोरेज है, यू कैन शेयर दिस। नाउ इफ आई वांट टू स्टोर मूवीज, I have a better storage. I have a distributed file system जिसमें better storage है। अब उसमें से एक भी नोड डाउन हो जाता है, आई कैन प्राउडली से कि आई हैव अ रेप्लिकेशन फैक्टर विच सेज मेरे पास जितनी ज्यादा मशीन्स है उतने ज्यादा रेप्लिका में बना सकता हूँ। रेप्लिका मतलब कॉपी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉन्ट टू सेव अ फाइल, सेम कॉपी ऑफ अ फाइल विल बी सेव्ड इन लेट्स से 10 अदर सिस्टम्स। सो अगर एक भी सिस्टम डाउन हुआ, आई स्टिल हैव 9 मोर सिस्टम्स टू गेट मी दैट इंफॉर्मेशन। ओके, दिस इज हाउ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम वर्क्स। डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम ऐसे समझ लो एक नेटवर्क है, बड़ा सा नेटवर्क है कंप्यूटर्स का जो अपने रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। ऐसा एक बड़ा सा नेटवर्क है जिसके अंदर ऐसे सारे रिसोर्सेज है, वो शेयर्ड है। बट ये ऐसा शेयर्ड है कि वो अपना एवरीथिंग, मतलब लेट्स से कैपेसिटी, रैम, स्टोरेज, SSD सब कुछ शेयर कर रहे हैं, सब कुछ। दिस वे अगर आप इस कंप्यूटर की कैपेसिटी है 113 GB, अगर ऐसे 10 कंप्यूटर मिल गए तो 1000 GB की कैपेसिटी बन जाएगी, विच इज रियली ग्रेट। ओके, एंड ऐसे अगर 100 कंप्यूटर्स और जुड़ गए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में, एंड इफ इट बिकम्स अ रेप्लिकेशन फैक्टर कि मैं इसके रेप्लिकास भी बना सकता हूँ, तो मुझे अपने बैकअप्स डिस्ट्रॉय होने की भी टेंशन नहीं है, बिकॉज आई नो कि 10 में से 9 कंप्यूटर तो ऐसे होंगे कि जो मुझे बैकअप वापस दे सकते हैं। ओके, दिस इज द पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब नाउ व्हाट इज HDFS? HDFS says Hadoop distributed file system. Hadoop we saw, Hadoop big data को प्रोसेस करने के लिए एक टेक्नोलॉजी है। तो the Hadoop guys thought, what if we take the concept of distributed file system? What we anyways have many nodes. Hadoop as you saw, nodes बहुत ज्यादा है जो कंप्यूटेशन दे रहे हैं। अगर एक टास्क करने में 10 सेकंड लग रहा है एक मशीन को, तो हम वैसे 10 मशीन लगा के वो पूरा टास्क 1 सेकंड में कर सकते हैं। तो Hadoop कह रहा है कि we already have that architecture to improve our computation and speed. So what if I give a distributed file system का architecture भी to improve storage? तो Hadoop बहुत ज्यादा तेज होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बहुत सही काम कर रहा है Hadoop. HDFS is something which is currently used everywhere. Okay, but let's see how HDFS works. HDFS काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल है। एक सर्वर रहता है, एक सर्वर। ओके, नाउ दिस इज योर मास्टर सर्वर। दिस मास्टर सर्वर इज नोन एज नेम नोड। ओके, नेम नोड नाम है इसका, इस मास्टर सर्वर का। अब मास्टर सर्वर के पास बहुत सारे स्लेव्स है, बहुत सारे स्लेव्स। Now these slaves are controlled by this master server. Okay, कैसे? Master server says कि यार तुम जो slaves हो, I am a powerful computer, I know, I am a really powerful computer, but these slaves, they might be or might not be powerful, but if we combine the power of slaves, I can get a good output. Okay, अब ये HDFS के टर्म्स में कैसे बोल सकते हैं इसको? फाइल सिस्टम के नेम नोड मास्टर है ना, वो बोलेगा कि जो स्लेव्स है ना, आपका नाम है डेटा नोड्स। आप ऐसे नोड्स हो which will be responsible to store data, responsible for storing data. So these data nodes are basically computers which has good amount of storage capacity, and these computers will store your data. And what will name node do? Name node will keep a registry that this node, data node 1 has this part of your file, or file A is stored in data node 7, file B is stored in data node 9, file C is stored in somewhere here. तो ऐसे name node जानता है, keeps a registry of where data is stored. Data nodes क्या करते हैं? They are the machine who stores the data actual में,
एक्चुअल में डेटा इज स्टोर्ड इन डेटा नोड्स एंड डेटा नोड्स की इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन नेम नोड. आई होप दिस इज क्लियर. अब आप कहोगे कि यार ये डेटा नोड है, इसके पास डेटा था. What if this node dies or this node crashes? But you can see there are still many nodes who can replace him. But what if name node जो master है, master ही मर गया तो क्या करेंगे? तो डेटा ही नहीं आएगा ना if master dies. That's why HDFS says we have a secondary name node. A secondary name node who is responsible to keep a check on name node. If name node crashes, he will take name node का place. Meanwhile, जो name node है ना, जो original वाला, it can be repaired. और जो भी है वो repair हो सकता है. Meanwhile, secondary name node can take his command and operate on these data nodes. बहुत ही ज़्यादा basic है कि HDFS distributed है. ये ऐसे दिखने में workers है, but basically these are computers who are distributed. ऐसे समझ लो कि ये अपनी computer lab है. ये मैम का कंप्यूटर है, जो लैब में जो सर या फिर मैम बैठते वो उनका कंप्यूटर है जो, या फिर ये सर्वर रूम है जो किट्टे सर बैठते ये सर्वर रूम है. अब ये सारे कंप्यूटर्स हैं किसी एक लैब के. अब ये सर्वर रूम से सारे कंप्यूटर्स मैनेज हो रहे हैं. बट अगर सर्वर रूम का कंप्यूटर ऑफ हो जाता है तो वहाँ पे दूसरे सर्वर रूम में दूसरे कंप्यूटर वाले बैठते हैं राजेश त्रिपाठी से, तो वो सेकेंडरी नेम नोड है. सो अब ये ऑफ हो जाए तो ये देखते हैं इन सारे नोड्स पे, और बेसिकली जो काम चलता है वो इन सारे नोड्स पे चलता है. ये तो सिर्फ मॉनिटरिंग करते हैं. सिर्फ ऐसे ही फंडा समझो. सर्वर रूम वाले जो सर लोग हैं, 2 कंप्यूटर उधर चलते हैं, वो मॉनिटरिंग करते हैं, और एक्चुअल काम जो चलता है वो बाकी कंप्यूटर्स में चलता है. और ये सारा सिम्बायोसिस के इंटरनल नेटवर्क पे चलता है. ठीक है. दिस इज हाउ HDFS वर्क्स. एंड व्हाई वी आर यूजिंग DFS, बेसिकली फाइल सिस्टम की बात करें, बिकॉज डेटा स्टोर हो रहा है यहाँ पे. ओके. Now, why do we store file on HDFS? Motivation क्या है? क्यों स्टोर करें हम तो अपने लैपटॉप में भी कर सकते हैं, हम अपने हार्ड डिस्क में भी कर सकते हैं, तो हम HDFS में क्यों स्टोर करें? So the motivation is reliability. Reliability means I should be reliable कि let's say कल को मेरी हार्ड डिस्क खो गई, मेरा लैपटॉप, मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, या फिर मेरा लैपटॉप ही नहीं खुल रहा है. So that is something which I am not reliable. मतलब मैं इस लैपटॉप पे reliable नहीं हूँ. ये लैपटॉप ऐसे reliable नहीं है, कभी भी खराब हो सकता है. But HDFS says that you have a system of hundreds and thousands of laptops या फिर computers. You can blindly be reliable. Reliability factor बहुत अच्छा है इनका, क्योंकि एक भी क्रैश हो जाए, there are 99 others to serve you. 99 में से 10 क्रैश हो जाए, there are 900 और बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स टू सर्व यू. तो रिलायबिलिटी काफ़ी अच्छी हो जाती है. नाउ नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी. लेट्स से मेरी हार्ड डिस्क खो गई, या फिर हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, या फिर करप्ट हो गई. सो अवेलेबिलिटी HDFS में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज रेप्लिका जो मैं बोल रहा था, मे बी दिस डेटा नोड, दिस नेटा नोड और दिस नेटा नोड, 3 डेटा नोड्स के पास रेप्लिकेशन है. तो अगर ये वाला नहीं दे पाया तो ये वाला तुरंत आपको डेटा दे देगा. तो अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है. आपको मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ती कि फ्रॉम वेयर माई डेटा इज कमिंग फ्रॉम. यू जस्ट नो दैट माई डेटा विल कम टू मी. फ्रॉम विच कंप्यूटर इट इज कमिंग, व्हाई इट इज कमिंग, आई डोंट नो. इट शुड कम, दैट्स ऑल. दैट इज नोन एज अवेलेबिलिटी. नेटवर्क बैंडविड्थ. हाँ, नेटवर्क बैंडविड्थ, ये पॉइंट अभी के लिए रुकते हैं, क्योंकि आपको अभी समझना पड़ेगा कि नेटवर्क बैंडविड्थ का और HDFS का क्या लेना है. ओके, तो ये पॉइंट अभी के लिए रुकते हैं. द इनपुट फाइल, लेट्स से 1 TB. अब मैं टेराबाइट्स में बात करूंगा फाइल्स के बारे में. मैं MB वाली फाइल्स अभी गए, वो जमाना गया. नाउ फाइल्स आर टॉक इन टर्म्स ऑफ टेराबाइट्स एंड पेटाबाइट्स. ओके. नाउ लेट्स से 1 TB की फाइल है. Now I have this kind of architecture where this computer has a capacity of 500 GB. इसके पास 1 TB की कैपेसिटी नहीं है. This computer has a capacity of 100 GB. This computer has a capacity of 20 GB. ऐसे बहुत सारे कंप्यूटर्स अलग अलग कैपेसिटी वाले. इन सबको मिला दो तो you can definitely get 1 TB. तो hence this distributed architecture is really good
फॉर स्टोरिंग बिगर फाइल्स. ऐसे बड़ी बड़ी फाइल्स को स्टोर करने के लिए 1 TB या फिर और बड़ी फाइल्स को स्टोर करने के सच काइंड ऑफ आर्किटेक्चर इज रियली ग्रेट. बट व्हाट इफ आई कीप माय फाइल इन दिस डेटा नोड जिसके पास एक अराउंड ½ टेराबाइट का स्टोरेज है. अगर मैंने सब इसको दे दिया और बचा कुछ इसको दे दिया तो दैट इज नॉट गुड. अगर मैं सब इसको दे दूंगा, थोड़ा इसको दे दूंगा, थोड़ा इसको दे दूंगा, 3 कंप्यूटर में मैं अपना काम कर दूं, सो ये जो बाकी के कंप्यूटर्स है ना, ये वेस्ट हो जाएंगे, ये किसी काम के नहीं रहेंगे, बिकॉज दे आर अनयूज्ड. ये यूज ही नहीं हुआ है और मैंने पूरी तरह से इसको यूज कर लिया. So that should not be your architecture. Your architecture should be, if you get a file, if you get a big file, you should split it. You should split it evenly into each of the data node. हर एक data node पे छोटी छोटी फाइल जानी चाहिए. The input file, let's say 1 TB, is split into smaller chunks or blocks of 64 MB or multiples of 64 MB. ये जरूरी नहीं है 64 MB. You can anyways increase or decrease this size. You can make it 1 GB as well. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप जब कॉन्फ़िगर करते हो अपना HDFS, whenever you configure or whenever you create your own HDFS, you can configure that my chunk size should be 128 MB. My chunk size should be 256 MB. कुछ भी दे सकते हो. So that 1 TB file will be divided into such chunks, and ये सारे chunks slave nodes में जाते हैं. The chunks are stored on multiple nodes as independent files on slave nodes. So these are your slave nodes. यहाँ पे ये छोटे छोटे chunk चला जाता है. अब these chunks basically इस सब की registry जाती है आपकी name node पे जो master है. Okay? To ensure that data is not lost, replicas are stored in the following way. अब replica बनते हैं. replica मतलब जो भी 64 MB जाने वाला है उस चीज की कॉपी बन के जाती है, जिससे अगर वो 64 MB का जो स्प्लिट वाला पार्ट था वो अगर खो भी गया, still have many copies all over the network जो आपको काम आ सकती है. और कितने replicas बनते हैं? By default, you should always keep this in mind. By default, HDFS में 3 replicas बनते हैं. Default replication factor is 3. By default, HDFS में 3 replica बनते हैं हमेशा. You can increase it to 4, 5, 8, 10 जितना भी आप चाहो, but by default it is 3. अब कैसे प्लेस होता है? So ensure that the data is not lost. Replicas are stored in the following way. एक लोकल नोड पे, लोकल नोड मतलब डेटा नोड की ही बात हो रही है, ये डेटा नोड ही है सब कुछ. ओके, स्लेव नोड ही है. वन ऑन रिमोट रैक इन केस ऑफ लोकल रैक फेल्स. अब ये रैक और नोड क्या है? नोड इज दिस पर्टिकुलर थिंग. रैक इज बेसिकली वन पार्ट ऑफ द स्टोरेज. एक रैक मतलब एक स्टोरेज का एक पार्ट है. ठीक है. वन ऑन रिमोट रैक मतलब दूर किसी रिमोट किसी और सर्वर पे एक कॉपी स्टोर होगी. वन ऑन लोकल रैक मतलब उस लोकल नोड में भी एक कॉपी स्टोर होगी. इन केस लोकल नोड फेल मतलब अगर ये नोड का कुछ तो CPU फेल हो गया या फिर कुछ भी फेल हो गया, स्टिल उस कंप्यूटर के लोकल में होगी वो फाइल. 2 चीज है, आप कंफ्यूज मत होइएगा. एक कंप्यूटर है जिसको बोलते हैं नोड. ठीक है, पूरा नोड. उसका एक एक्सटर्नल पार्ट है जिसको बोलते हैं रैक, जहाँ पे हम लोग एक्सटर्नल स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, हार्ड डिस्क समझ लो. लोकल नोड की एक हार्ड डिस्क में उसको बोलते हैं लोकल रैक. हार्ड डिस्क एग्जैक्टली हार्ड डिस्क नहीं होती, बट एक रैक होती है जिसके अंदर डेटा स्टोर. अब डेटा कहाँ जाता है? सबसे पहले लोकल नोड पे जाता है, मतलब एक कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में जाता है, फिर दूर किसी रखे हुए कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में रिमोट रैक में जाता है, फिर आपके लोकल रैक में भी रहता है. तो 3 जगह स्टोर होता है, 3 रेप्लिका. अदर रैंडमली पेस्ट मतलब रैंडमली कहीं पे भी चला जाता है. ठीक है. अब बाय डिफॉल्ट रेप्लिकेशन फैक्टर इज 3. तो लेट्स से अगर आपकी लोकल नोड खराब भी हो गई, स्टिल यू विल हैव अ लोकल रैक अवेलेबल टू स्टोर टू गिव योर डेटा. अगर लेट्स से लोकल रैक भी खराब हो गया, यू स्टिल विल हैव रिमोट रैक टू गिव यू द डेटा. लेट्स से रिमोट रैक भी खराब हो गया, स्टिल यू विल हैव रैंडमली प्लेस्ड फाइल्स जो खराब हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते.
बट मोस्टली पॉसिबिलिटीज होती है कि एक दिन में बहुत सारी मशीन्स खराब नहीं होती, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव रेप्लिकेशन फैक्टर। तो ये HDFS काफ़ी पावरफुल है, जो नेक्स्ट लेवल सोच के बनाया गया था कि एक यूज़र को कभी दिक्कत ही ना हो। इसलिए आपने देखा होगा कि कभी भी इतने साल होते आ गए, एक दिन भी याहू नहीं, अपना यूट्यूब फेल नहीं हुआ है, कभी यूट्यूब क्रैश नहीं होता। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी सारी क्या कहते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म या फिर बैकअप्स है। HDFS पे ही काम करता है यूट्यूब भी, उनके पास ऑलरेडी सब बैकअप रेडी है। एक भी फेल हो गया, उनके पास धड़ाधड़ दूसरे 50 नोड्स और है जो सर्व करने के लिए तैयार है। दिस वे याहू, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब बहुत रेयरली फेल होता है, बहुत ही रेयर। एक आध बार कभी मैंने तो देखा था 3-4 साल में एक आध बार व्हाट्सएप फेल हो जाता है, उसके अलावा कोई फेल भी नहीं हुआ, उसके अलावा मुझे नहीं लगता और कोई फेल होता है। तो दीज ऑल आर रियली फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम, कि उनको फॉल्ट ही नहीं आती कभी, ओके, बिकॉज ऑफ HDFS, हैडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। इसको इग्नोर करो। बेसिकली ये मास्टर नोड है जहाँ पे आपकी फाइल की इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। ये मास्टर नोड में ब्लॉक 1 स्प्लिट हुआ, ब्लॉक 2 स्प्लिट हुआ, ब्लॉक 3 स्प्लिट हुआ, ब्लॉक n स्प्लिट हुआ। अब ये ब्लॉक कहाँ गया? ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 गया इस डेटा नोड 1 में गया। अब ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 का एक कॉपी डेटा नोड इसमें भी गया। सो यू कैन सी दीज आर डेटा नोड्स, ओके। सो नाउ मास्टर नोड जस्ट कीप्स अ ट्रैक कि कहाँ पे क्या गया, और जो एक्चुअल में जाता है वो डेटा नोड्स में जाता है। सो डेटा नोड्स आर द devices which actually store the data. Master nodes are basically, or master node or name node are basically the nodes which store the information of data. चलो, नेम नोड क्या करता है? सॉरी, मास्टर नोड या फिर नेम नोड, इसका एक ही फंक्शन होता है, मैनेजेस द फाइल सिस्टम। इट इज द फाइल सिस्टम मैनेजर हु मैप्स द फाइल्स टू ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स टू डेटा नोड्स। ब्लॉक्स मतलब आपके पास फाइल आई, you got a file of 1 TB. Now what your name node will do, it will divide or split that file into many blocks and it will later map these blocks to data nodes. कि ये वाला ब्लॉक इस डेटा नोड में गया, ये वाला ब्लॉक इस डेटा नोड में गया, ये वाला ब्लॉक इस डेटा नोड में गया, और ये वाले ब्लॉक का साइज 64 MB था, इस वाले ब्लॉक का साइज इतना था, रेप्लिकेशन फैक्टर इतना था। सो बेसिकली नेम नोड क्या करता है? मैनेजर जैसा रहता है, फाइल मैनेजर रहता है कि इसके पास इतनी फाइल जानी चाहिए, इसके पास इतना रेप्लिका जाना चाहिए। दिस वे इट मैनेजेस द फाइल्स, ओके। योर नेम नोड मेंटेनिंग स्टेटस ऑफ डेटा नोड्स। अब डेटा नोड्स का स्टेटस जो होता है ना, वो भी यही नेम नोड ही देखता है। क्या करता है? वो हार्ट बीट लेता है। हार्ट बीट नेम नोड क्या करता है? डेटा नोड को हार्ट बीट सेंड करता रहता है रेगुलर इंटरवल पे। अगर उसने हार्ट बीट सेंड की और डेटा नोड ने हार्ट बीट वापस सेंड की, तो वो नेम नोड समझ जाता है कि हाँ भाई जिंदा है, क्रैश नहीं हुआ है मेरा सिस्टम। लेट्स से ही सेंट सम सिस्टम और सम मैसेज कि आर यू अलाइव, और डेटा नोड ने रिप्लाई दिया ही नहीं। डेटा नोड का वेट नहीं करेगा नेम नोड। नेम नोड तुरंत बोल देगा कि डेटा नोड इज डेड, मर गया। नेम नोड का बहुत ही सिंपल सा फंडा है, मैनेजर है वो बोलता है कि आपने काम किया क्या नहीं। वो अगर एम्प्लॉय ने काम किया है तो बोल देगा हाँ किया है, तो मैनेजर उसको सैलरी बढ़ा के दे देगा, ये और काम लो, और पैसा लो, और काम लो। अगर उसने काम ही नहीं किया, उसकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, वो बोल देगा यार ये काम नहीं करता, इसको हटा दो, डेटा नोड इज डिक्लेयर्ड डेड। सिंपल सा फंडा है, ओके। मैनेजर जैसा होता है ना। ब्लॉक रिपोर्ट भी एक जनरेट करता है। डेटा नोड सेंड लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स ऑन इट। अब क्या करता है? ब्लॉक रिपोर्ट क्या होता है कि आपने जो भी ब्लॉक सेंड किया है डेटा नोड को, नेम नोड क्या कर देगा, जैसे आपने लास्ट इस पे देखा कि ब्लॉक्स बनाता है। नाउ these blocks are then sent to your data nodes. अब डेटा नोड पे एक ब्लॉक रिपोर्ट जनरेट करती है कि मेरे पास ये ब्लॉक है, मेरे पास एपिसोड 1, 2, 3 है। डेटा नोड 2 बोलते हैं मेरे पास एपिसोड 2, 7, 8 है। डेटा नोड 3 बोलता है मेरे पास एपिसोड 5, 6, 7 है।
इस तरह से नेम नोड को पता रहता है कि किसके पास कौन सा डेटा है. ओके, रजिस्ट्री मेंटेन रहती है कि नेम नोड शुड नो व्हाट काइंड ऑफ डेटा विच डेटा नोड हैज केप्ट, व्हाट ब्लॉक इज केप्ट विथ विच डेटा नोड, जिससे कि कल को किसी ने फाइल की रिक्वेस्ट की तो नेम नोड फटाक से बोल दे कि अच्छा डेटा नोड 2 पे आपका एपिसोड 2 रखा हुआ है, फटाक से ले लो. ओके, ऐसे ब्लॉक रिपोर्ट्स डेटा नोड सेंड करते हैं. यूज्ड टू चेक हेल्थ ऑफ एचडीएफएस. हेल्थ ऑफ एचडीएफएस मतलब कि कितने डेटा नोड ने ब्लॉक्स मेंटेन करके रखे हुए हैं, कितने डेटा नोड ऐसे हैं कि वो ब्लॉक्स ही नहीं मेंटेन कर रहे, खाली बैठे हुए हैं. तो अगर खाली बैठे हुए हैं तो वो नेम नोड कुछ रेप्लिकेशन उस पर डाल देगा कि यार आप एक काम करो, आप खाली मत बैठो, आप रेप्लिका रखो अपने पास कि लेट्स से कल को कोई डेटा नोड मर गया, यू कैन एटलीस्ट प्रोवाइड द रेप्लिका. तो दिस वे मास्टर नोड परफॉर्म्स हिज फंक्शंस. ओके, मास्टर नोड का नाम नेम नोड भी होता है. तो ये रेप्लिकेशन परफॉर्म करता है, डेटा इंटीग्रिटी करता है और रीबैलेंसिंग करता है. तो मैं आपको ये सब सेंड कर दूंगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, वही सब चीज़ें जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि रेप्लिकेशन, कि अगर डेटा नोड फेल होता है तो या फिर ब्लॉक करप्ट होता है तो रेप्लिकेशन की ज़रूरत पड़ती है. तो कोई भी एक डेटा नोड के पास देयर शुड बी वन रेप्लिका ऑफ द फाइल विच इज स्टोर्ड. दिस वे रेप्लिकेशन हो जाता है और डेटा नोड कैन गिव नेम नोड द इंफॉर्मेशन कि यार मेरे पास रेप्लिकेशन है, तो इन केस ऑफ डिस्क फेलियर आप टेंशन मत लो, आई हैव द डेटा कॉपीड विथ मी. ओके, दिस वे रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस. डेटा इंटीग्रिटी मतलब कि डेटा सही तो है, डेटा सही तो नहीं, मतलब डेटा गड़बड़ तो नहीं आपके पास. हेंस चेकसम कैलकुलेटर. चेकसम मतलब लेट्स से आई हैव 64 MB ऑफ डेटा, बट 64 MB में से ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा 2 MB ड्रॉप हो गया, 2 MB खो गया. सो व्हाट ईच ब्लॉक डज, ईच ब्लॉक जनरेट्स अ चेकसम. चेकसम मतलब एक रिपोर्ट बनती है जो वैलिडेट करता है कि मेरे पास 64 MB ही डेटा है या फिर 1 GB ही डेटा है. अगर वो चेकसम मैच नहीं हुआ तो नेम नोड को समझ में आ जाएगा कि यार डेटा लॉस हुआ है, कहीं पे तो डेटा गया है, खो गया है, किसी तरह इसको फटाक से इसको ठीक कर देते हैं वरना यूजर डांटेगा अपने. दिस वे डेटा इंटीग्रिटी इज ऑल्सो केप्ट इन चेक बिकॉज ऑफ नेम नोड. नाउ रीबैलेंसिंग और बैलेंसर टूल, ये काम भी नेम नोड के पास है. लेट्स से बहुत सारा डेटा आ गया, बहुत ही सारा डेटा आ गया जिसको मैनेज करना है. सो नेम नोड का काम क्या है, इट विल टेल द एडमिन और कोई भी है कि यार डेटा ना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, इट इज़ टाइम टू ऐड न्यू नोड्स, इट इज़ टाइम टू इंट्रोड्यूस न्यू कंप्यूटर्स टू आवर नेटवर्क, टू आवर सिस्टम, जिससे कि और भी ज़्यादा नंबर ऑफ यूजर्स को सर्व हो सके. हम लोगों ने स्टार्टिंग में ग्राफ देखा था याहू का, जैसे जैसे वो सक्सेसफुल होते जा रहे थे, नंबर ऑफ नोड्स भी बढ़ते जा रहे थे. सो ये क्यों करता है, क्योंकि नेम नोड ने उनको बताया हुआ है कि जैसे ही डेटा बढ़ रहा है यू कैन ऑल्सो ऐड न्यू नोड्स. लेट्स से डेटा कम हो रहा है, अपने पास डेटा की रिक्वेस्ट ही नहीं आ रही है और अपने पास 100 से ज़्यादा कंप्यूटर्स है, बल्कि सारे यूज़ नहीं हो रहे, तो डीकमीशन भी कर सकता है. डीकमीशन मीन्स रिमूवल ऑफ अननेसेसरी नोड्स. रिमूवल ऑफ नोड्स, हमें क्यों बेफालतू अपना बिजली का बिल बढ़ाना है, क्यों अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बढ़ाना है अगर अपना काम ही नहीं है. जैसे इफ यू कैन सी orkut.com, आप लोग को शायद याद भी नहीं होगा, ठीक, ऑर्कुट छोड़ दो, या फिर ऐसे कुछ वेबसाइट्स जो अभी चलती भी नहीं है, आप पहले बहुत यूज़ करते थे बट आप यूज़ भी नहीं होती, तो अगर वो सेम नंबर ऑफ नोड अभी भी चला है तो वो पागल हो जाएंगे, तो उनको इतना खर्चा आ जाएगा. सो दे कीप ऑन डीकमीशनिंग द नोड्स एज वेल. डिलीशन ऑफ सम फाइल्स, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा रेप्लिका बना दो, और लेट्स से आपने रेप्लिका बना दिया, एक फाइल के 10 रेप्लिका बना दिया और वो फाइल कोई रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा, तो आपका रेप्लिका बनाने का जो पर्पस था वो किसी काम का ही नहीं है, बिकॉज नो वन वांट्स दैट फाइल. अब बहुत सारी मूवीज ऐसी है जो कोई देख ही नहीं रहा है, कोई देखना पसंद ही नहीं करता. राम गोपाल वर्मा, इसकी मूवी कोई नहीं देख रहा है, तो धीमे धीमे नेटफ्लिक्स हटा देती है अपनी मूवीज. आपको मेल आता होगा, नेटफ्लिक्स इज नाउ रिमूविंग दीज 3 मूवीज, और नेटफ्लिक्स इज नाउ रिमूविंग दीज 17 मूवीज, दीज मूवीज विल ओनली बी अवेलेबल फॉर अ मंथ. कुछ वो जानते हैं कि ज़्यादा यूजर्स वो मूवीज देख ही नहीं रहे, हटा देते हैं.
दिस इज हाउ डिलीशन ऑफ फाइल टेक्स प्लेस. क्यों? कि नेम नोड बताता है, नेम नोड कहता है यार ये फाइल्स कोई देख ही नहीं रहा, हटा दो उसको. ओके, दिस इज हाउ नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम वीडियो, ये सब लोग सेम कॉन्सेप्ट पे ही काम करते हैं. ओके, रोबस्टनेस, अगर आप रोबस्टनेस की बात करो, रोबस्टनेस इज बेसिकली कि बहुत ही फाड़ू सिस्टम है, बहुत ही अमेजिंग सिस्टम है कि मतलब एकदम रोबस्ट है, उसमें फॉल्ट आ ही नहीं सकती. उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बोलता है कि रोबस्ट क्यों है. लेट्स से मैं नेम नोड पे कुछ काम कर रहा हूँ, मैं नेम नोड का कोड अपडेट कर रहा हूँ, मैं नहीं बोल सकता कि भाई रोबस्ट सिस्टम है. क्यों? क्योंकि मैं नेम नोड का कोड अपडेट कर रहा हूँ, उतने में अगर कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, नेम नोड विल फेल. मेरा एक कोड डेवलपर है, वो सेकेंडरी नेम नोड पे काम कर रहा है, नेम नोड विल फेल. मैं कैसे बोल सकता हूँ कि रोबस्टनेस है? हेंस एक सेफ मोड भी होता है. सेफ मोड, सेफ मोड मतलब इसको बहुत ही सोच समझ के बनाया गया. सेफ मोड क्या बोलता है? जब भी मैं अपना डिवाइस स्टार्ट करूंगा तब रेप्लिकेशन नहीं होगा. मतलब ऐसी हर चीज करता है वो जिससे कि बहुत ही सिस्टम बहुत स्टेबल हो जाए. अगर स्टार्टअप में ही रेप्लिकेशन करने बैठ गया, पता चले स्टार्टअप में ही फेल हो गया, तो रेप्लिकाज ही नहीं बनेंगे. स्टार्टअप में ही डिवाइस स्टार्ट होने से पहले फेल हो रही है तो रेप्लिकाज नहीं बनेंगे. इससे पहले रेप्लिकाज रोक दो स्टार्टअप में. रिसीव्स हार्टबीट्स एंड ब्लॉक रिपोर्ट्स ऑन डेटा नोड्स. भले ही मैं काम कर रहा हूँ नेम नोड पे, बट मैं टाइम पे बराबर एकदम हार्टबीट्स और ब्लॉक रिपोर्ट्स डेटा नोड से लेता रहूंगा, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरा सिस्टम सही चल रहा है. ऑल दीज थिंग्स सम अप टू मेक अ सेफ मोड. कि चाहे जो हो जाए मैं सेफ मोड में ही रहूंगा हमेशा. ठीक है, सेफ मोड में मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली. बस अगर ये सब चीजें सही से चल रही है, अगर ये सब चीजें से ओनली अ परसेंटेज ऑफ ब्लॉक्स आर चेक फॉर डिफाइंड रेप्लिकेशन फैक्टर. हाँ, अब रेप्लिकेशन ऐसा भी नहीं कि जीरो रेप्लिकेशन करना है, हमें कुछ रेप्लिकेशन डालना भी पड़ेगा अगर हम सेफ मोड में चला रहे हैं. तो अगर एक दो ब्लॉक्स या फिर 10% ऑफ ब्लॉक्स भी रेप्लिकेशन फैक्टर दिखा रहे हैं देन इट्स फाइन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सेफ मोड में. सेफ मोड में आपने अपना पीसी चलाया होगा तो ग्राफिक्स सही से नहीं दिखती, बहुत सारी प्रॉपर्टीज सही से नहीं चलती. तो HDFS का सेफ मोड भी कहता है कि सब चीज़ें सही से चलाने की जरूरत नहीं है, सेफ मोड ही है, क्या ही है, फिर भी अच्छे से चलना चाहिए. सो अगर सब कुछ सही से चल रहा है तो एग्जिट सेफ मोड. ठीक है, एग्जिट सेफ मोड. अब यहाँ पे आपका सिस्टम नॉर्मली चलेगा जैसे एकदम वो चलता है. ओके, सो दिस इज योर एंटायर आर्किटेक्चर ऑफ हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. बहुत ही अमेजिंग सा फाइल सिस्टम है. ठीक है, जो फॉल्ट टॉलरेंट है, मतलब इसमें कभी भी दिक्कतें नहीं आएंगी. यू कैन सी योर गूगल ड्राइव कभी क्रैश नहीं होती आपकी गूगल ड्राइव. क्यों? क्योंकि वो HDFS में बनी हुई है, गूगल फाइल सिस्टम बोलते हैं उसको. योर असाइनमेंट इज आप पढ़ना गूगल फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ना, इतना अमेजिंग है ना, आप शॉक हो जाओगे. HDFS से भी पहले आया था गूगल फाइल सिस्टम, वो उस लेवल पे काम करता है. फॉल्ट टॉलरेंट होता है, कभी फेल नहीं होता. स्केलेबल मीन्स आपको चाहिए कि आपके गूगल पे 15 GB की ही स्टोरेज है, आप फटाक से बोल सकते हो कि यार नहीं मुझे इसको बढ़ानी है, तो तुरंत वो 2 नोड और ऐड कर देगा और आपकी स्टोरेज 100 GB हो जाएगी. रिलायबल है. आप सुबह 4 बजे भी बोलोगे कि यार मुझे फाइल तो वो दे देगा, आप कभी भी बोलोगे आपको फाइल मिल जाती है. ओके, फाइल आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन लार्ज ब्लॉक फॉर एफिशिएंट रीड्स एंड पैरेलल रीड्स. Files are distributed in large block for efficient reads and parallel reads. Okay, ये अच्छा. Efficient read मतलब कितने fast read हो पा रही है. मतलब let's say if I am accessing some file, वो कितने efficiently मैं उसको read कर पा रहा हूँ. मैं तभी उसको large block में रखता हूँ कि let's say अभी मुझे पूरा का पूरा एपिसोड देखना है, तो लार्ज ब्लॉक ऑफ एपिसोड में उसको रखूंगा जिससे कि मैं पूरा एपिसोड देख पाऊँ. अगर मैं छोटे चंक्स में डिवाइड किया है तो वो बफरिंग बहुत लेगा. बफरिंग लेगा, फिर दूसरा चंक लोड करेगा, फिर से बफरिंग लेगा, तीसरा चंक लोड करेगा. तो ये एफिशिएंट रीड के लिए फाइल डिस्ट्रीब्यूशन लार्जर ब्लॉक में होता है जिससे कि पूरा का पूरा वीडियो आ जाए अपने पास या पूरी फाइल आ जाए. पैरेलल एक्सेस मतलब
एक टाइम पे अगर 10 लोग भी उस सेम फाइल को एक्सेस कर रहे हैं तो भी वो फाइल मिलनी चाहिए. दिस इज नोन एज पैरेलल एक्सेस. ओके, सो आज इतना ही रखते हैं. अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस है देन यू कैन आस्क.